Assalamualaikum everybody, welcome to हम पीस इन अ पॉडकास्ट। तुम लोग को वो याद है हम पांच रन तंग तंग स्टार्ट हम हाँ, उसमें एक दरवाजा खोलती थी हमेशा। वो सास भी कहीं पे होता लेकिन आई एम ग्लैड दैट यू डोंट नो दैट तो मुझे ना जब मैं हम पीस इन अ पॉडकास्ट बोलती हूँ तो मेरे दिमाग में ऐसी कोई जिंगल आता है। तो आज हम सिना और नीसम के साथ एक नया मटर लेके आए हैं पी ड्रम रोल। Avril, please put your hands together for Pooja the P. I know. Hello. Pooja, welcome to the show. आप हमारे गैंग का क्वर्क हैं, आप हमारे गैंग का सैसीनेस हैं और हम बड़े एक्साइटेड हैं कि आप अपनी विट और बैंटर को लेकर हमारे शो में आई हैं, along with your beautiful hair, of course. तो पूजा थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, प्लीज बताइए कि हम आपको पूजा क्यों कहते हैं। बिल्कुल. Hello everybody. Hello. बहुत शुक्रिया. I'm very happy I could make it to the session. Very excited also. My name is Sabha, but I am better known as Pooja by my lovely friend. Why? It will save it for another day. But it seems to have stuck. So I have known these guys for not a long time. It feels like it's been forever. Aju I've known for a while. I came to Canada about 5 years ago. Moved here for school, university, and then have been here ever since. I moved here initially to go to culinary school to become a chef for a and फिर जो है stayed back, started working. I now work as a culinary instructor, as chef, and a restaurant consultant in the GTA in Toronto. And my family has also now moved here, so we are almost in that transitionary settling phase. So it's great. भाई बड़ी वाह है, आपका खाना लगता नहीं है, आपके को लगता है। How about you? That is only the top half today. भाई इसलिए आज आपने अगर गेस नहीं किया तो आज का टॉपिक ये है कि खाएंगे क्या, बिकॉज कल नीसम के घर में दावत है और हम खा रहे हैं होम मेड निहारी जो ओवरनाइट डाइट की है। अब जो मैं नहीं बना रहा हूँ। नीसम नहीं बना रहा, लेकिन नीसम जनरली खाने पीने खानदान से गुड फॉर अस। मगर बहुत प्रेशर है मुझ पे क्योंकि मैं माँ की बिगड़ी हुई बेटी जो किचन में नहीं गई, और मैं यहाँ आई और मेरे दोस्त ऐसे आए हैं कि एक शेफ हैं, एक और बड़ी डिजर्ट मेकर और प्रोफेशनल कुक रह चुकी हैं, और तीसरे आदमी हैं जो कि पराठे और रोटी घर में खुद बनाते हैं। तो ये तो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड है। बट आई रियली वांट टू टॉक अबाउट, जब हम माइग्रेट कर रहे होते हैं तो एक बड़ी डैश हुई होती है आपकी कि आप सोचते हैं कि यार खाएंगे क्या, यू नो, और स्पेशली इफ यू आर इन द हलाल हराम रेशो, आपका जरा सा लीनिंग टुवर्ड्स उस साइड पे है, तो आपकी बड़ी वो होती है कि आप सोचते हैं कि खाएंगे क्या, क्या बनेगा, क्या हम फास्ट फूड पे रहेंगे, खर्चा कैसे होगा। सो टुडेस टॉपिक इज ऑल अबाउट food, because Pakistani ke liye foodie, they're foodies and it's really a big thing having your food and what kind of food. तो जरा इस पे, who wants to start first and say what has this journey been for you? Were you a foodie in Pakistan? Did you cook in Pakistan? Did you have any struggles as you moved here? क्या scene है boss? Yes. So I want to really start this out because this is something very close to my heart. Back in Pakistan, and when I moved here, I realized कि सबसे बड़ी जो entertainment थी वो trying out new restaurants, going to new places every single day. And in Karachi, it's more like new restaurants are opening up all the time. You're hearing about so much, and you want to go there. There are no restrictions here. अच्छा ये halal होगा, ये दूर होगा, ये यहाँ से इतना दूर है. We're not used to that. Yeah. The biggest transition I faced was I lost on a lot on my social life because I realized my social life was revolving around going to restaurants. यहाँ के ये हुआ कि अच्छा चलो ठीक है, we'll try new places, but वो जो एक मजा होता है of meeting new people, going with your friends, वो इतना नहीं था, especially when you leave your social circle behind. Yeah. So I think the biggest change was realizing that not all options are open for you when you move, and realizing that you might not have the same kind of fun because you're not with that same group of friends. So I think you evolve and you adapt and you realize that there are better things out there, but different. So it's been quite a fun journey. Interesting and you're so right कि हमारी तो socializing ही, at least I think जो जिस तरह हम लोग हैं, बहुत इसका एक major part खाना पीना होता था. You know, you met for food और क्या तुमने मुझे
पूरा याद दिला दिया कि वाकई में just the ability to basically walk into any restaurant and eat whatever desi version of Chinese or Italian. और यहाँ पर pure Italian कौन चाहता है, you know? वो बात नहीं I know. So, Nisam and Sina, who's going to take it forward? Nisam, you go So, for it. sure, yeah. I mean, like you said, to be honest, हमारा usual social setup ऐसा होता है कि the boys or at least the bachelor guys, they're not as involved kitchen वगैरह और cooking वगैरह में. I definitely had big plans about, like, you know, I have to starting stop you. to. Bachelor boys and bigly girls. but जो है वो as I was saying कि मेरे पास मेरा भी प्लान तो था that towards the end, like 2 महीना 4 महीना पहले कुछ मैं जो है वो जरा सीखना समझना शुरू कर दूंगा. Of course I knew the standard, like because my mom was a working lady as well, so हम लोग यूं थोड़े से, हमारे वो वाला नहीं था कि रोज नाश्ते में पराठा बना के लिटरली हम अपने हाथ से खिला रही होती हैं. Like she had stuff to do as well, तो इतना पैम्पर नहीं कर सकती थी वो हमें. बट तो ये होता था कि ऐसे जो है वो ब्रेकफास्ट वगैरह पे आई वाज प्रीटी सेल्फ सब्सिस्टेंस, बट बाकी चीजों के लिए जो है वो थोड़ा सा अपने पैरों पे खड़ा होना वाज रिक्वायर्ड. एंड व्हेन आई से दैट, आई से इट रियली अंडर एस्टिमेटिंगली, लाइक बहुत सारा खड़ा होना पड़ता है फॉर श्योर. बट आई मीन देखो, ओवरऑल इमिग्रेशन इन टोटलिटी इज, you know, a restart, a new phase in your life, comes with a whole lot of its challenges. So एक थोड़ा सा एक, I don't want to term it as necessarily fighter mentality, ताकि आपको ये ना लगे कि it's like, you know, कुछ बहुत दूबर हो गई कोई चीज, but it's more so just like be open and sort of like be flexible and mentally prepared to just take on, you know, roll with the punches basically. Yeah. That kind of thing. Yeah. So yeah. Yeah. All right. Makes sense. I understand what you're saying. Sina. You know, I found myself in a bit of a different position क्योंकि बचपन से मेरे कुछ family situations ऐसे थे कि I have known cooking since I was 9 or 10 years old. क्योंकि वो कुछ घर का setup ऐसा था. My mom used to be doing 2-3 jobs and घर में खाना पकाना होता था. तो I can, you know, अगर अम्मी ये सुनेंगी वो probably agree करेंगी इस बात से that I may be a better cook than my mom. That's only because life made it that way कि मैं बचपन से पकाती आ रही थी और मैं अम्मी की I used to make dinner sometimes, and it was a great life, and it's because of her 3 jobs that I am here today. Yeah. So fast forward to me coming here, थोड़ा सा बेस था कि खाना कैसे पकाते हैं, क्या करते हैं, और वो skills I guess enhance होती गई. लेकिन हाँ, यूनिवर्सिटी की एक बात थी that at least I think my friends can attest to this कि I was maybe the best cook in university. तो आम तौर पे सारों के लिए खाना पकता था certain weekends पे, और सारों को, like, you know, we enjoyed that because maybe I was the only one who could cook in university at that time. तो सारों को घर की बड़ी याद आती थी वो खाना खा के. I used to enjoy it, whatever little I could make. Yeah. And now to today, I think those skills have grown a lot. Lekin as an immigrant, that was not so much of an issue for me, but more of a sort of a learning curve के, you know, क्या करना है, कैसे करना है, limited resources हैं, उसमें best how to, you know, use your resources best. Okay, so I have a सवाल for you guys. Name 2 things जब तुम लोग पहली दफा आए थे यहाँ, तुम सूटकेस में खाने की कौन सी 2 चीजें लेके आए थे? 2 food things. And अगर अभी तुम पाकिस्तान जाओगे तो खाने की कौन सी 2 चीज साथ लेके आओगे? Okay, so I want to start out with this. So जो मैं लेके आई थी, definitely शान मसाला. And now you realize कि क्या मिलता है? You come here and Nimco. I was getting Nimco for sure. Yeah. Now that I've come here, I realize it's everywhere. If I go back, if I could bring more things, it would be Dawn ki double roti. Dawn की double roti? God, I miss it so much. Oh. Dawn की double roti? हाँ. मीठी, नरम, that. ये तो बड़ा सरप्राइज है. अच्छा. और दूसरी चीज? दूसरी चीज नहीं. खाली दाल की रोटी ले आओगी? हाँ, I think मेरा वहाँ नॉस्टैल्जिया वहाँ रुक गया है. चलो सही है, makes sense. सिना, तुम क्या लाई थी और क्या लाओगी? क्या लाई थी? सारे मसाले लाई थी. हाँ. कोई 10-15 मसाले लाई थी. हाँ. और नॉर की नूडल्स लाई थी. हाँ. और स्लिम्स की चिप्स लाई थी.
यस यस, मुझे तो याद, मुझे भी ऐसी चीजें याद आ रही है, मैं सोच रही हूँ और क्या लाई थी मैं। और तुम क्या लाओगी अगर अब जाओ तो? अब अगर जाऊं तो मैं अभी भी मसाले लाऊंगी, क्योंकि जो कराची में एम्प्रेस मार्केट में फ्रेश मसाला मिलता है वो दुनिया में शायद कहीं नहीं। सो हम्म, मैं वो सारे लाऊंगी, दोज आर फ्रेशली ग्राउंड एंड उनका जो जायका होता है, पॉट्स एंड पैन्स शायद मैं वो लाऊं, अगर खाने के हिसाब से आप बात करें हाँ तो हाँ, उसको मुझे खाने का फ्लेवर आता है इज कम्प्लीटली डिफरेंट। या Hmm. या Hmm. मीस। Interesting. Yeah, honestly, I didn't really bring any edibles with me उस लिहाज से. मसाला Yeah, वसाला। no, I didn't bring any because इसका एक और reason ये था कि एक तो first of all मैं मतलब zero cooking करता था and I did, so इसलिए मुझे कुछ मतलब जैसे the kind of understanding Sena already had, मुझे कुछ ऐसी कुछ भी नहीं थी for हाँ starters. दूसरा ये था कि चाहे वो I was gonna be staying initially first few weeks months with family anyway, तो I mean इस वजह से this was not like foreign कुछ ही वहां से लेके जाने की चीज, क्यों लैंड होटल साथ ही खाना बनाना है. But yeah, I guess if I were to say यहाँ आने के like now that I go and what would I bring back, तो उसमें एक तो चीज होगी, it's gonna sound weird but मुझे कोयला लेके आऊंगा मैं. क्योंकि हमें वो जो जो वाला कोयला यहाँ पे वो नहीं मिलता. लाइक अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स स्मोक शीशा, वो उस कोयले में महकी नहीं होती वो वाली. तो आपके बारबेक्यूज में जो है वो मतलब जो मुझे चीज फील होती है, इट्स गोना साउंड रियली वियर्ड, आई विल हैव लाइक अ थैली ऑफ कोयले इन देयर. दूसरा ये कि जो है वो ऑल्दो ऑन एंड ऑफ मिल जाते हैं, बट जैसे इस सीजन बिल्कुल नहीं मिले फाल से. मतलब आई नो जो भी हालत हो जाएगी फालसे की आते आते, बट फॉर श्योर if Sabah's bread can make it, my falsas can make it. So like I have my faith in that. या मैं फाल से जरूर लेके आऊंगा, क्योंकि वही बात है, आम भी यहाँ मिल जाता है, कीनू भी मिल जाता है, जामुन वामुन भी मिल जाता है, बट इस सब कोयले फालसा के मुझे लिए मुझे एक साल से कांटेक्ट मिला. करो, कोयले सॉरी. के कांटेक्ट करो तुम। कोयले के लिए मुझे कांटेक्ट करो, मैं बता हाँ यार, दूंगी सुनो चलो कल, तो एक और जगह खुल गई है, मैं कुछ और लेके आऊंगा. कल मीसम के घर में शीशा, वो छोटी बेबी है मीसम। अजय तुम ला रही हो ना? हाँ अच्छा, तो मैं सोचूं, मैं मुझे बिकॉज याद नहीं आ रहा, बट आई नो आई कैन नॉट रिमेम्बर इट वाज द फर्स्ट और सेकंड, बिकॉज माय सामान केम इन वेरी पीरियोडिकली, अलग अलग लोग लेके आए मेरा सामान। मगर आई नो कि मैंने निकोस के ऑर्गेनिक मसाले लेके आई थी मैं, so organic लाल मिर्च, organic I got those पिसे हुए hand like cold pressed, और आई थिंक लाइक यही चटपटी चीजें मैं लाई थी, इवन दो मैं कोई इतनी कोई शौक की नहीं हूँ, लाइक इट्स नॉट अ थिंग दैट आई एम एडिक्टेड टू, बट आई जस्ट गॉट इट फॉर नॉस्टैल्जिक पर्पसेस। और इस दफा जब मैं गई थी लास्ट टाइम, तो मेरे भाइयों के फरमाइशों पे मैं लिटरली वो कौन सा बारबेक्यू है बताओ जल्दी से, जो तारिक रोड पे बारबेक्यू कहाँ का होता है, घाई किन्नी, गफ्फार। तो गफ्फार से बारबेक्यू पैक करा के कुलाची का कुला, ओ माय गॉड मैं तो नाम ही भूल रही थी, क्या एक्सीडेंट हो रहा है मेरे से। ऑफिशियली कढ़ाई करा के, और अम्मा आम लेके आई थी स्मगल करके। वो अलग बात है कि पता चला इकबाल में सारे आम उससे भी बेहतरीन मिले, लाइक पाकिस्तान से भी हाँ, बेहतरीन। ये पाकिस्तान के सारे जो अच्छे एक्सपोर्ट होते हैं वो कनाडा में तो यही आते हैं ना. हाँ, सो गाइस ऑल दोस वाचिंग, प्लीज नो कि यहाँ बहुत अच्छे आम मिल जाते हैं। फालसा अगर आप ला सकते हैं तो एक अलग लेवल है। बट एनीबडी हु इज वाचिंग अस राइट नाउ, आई डू वांट यू इन द कमेंट सेक्शन टू प्लीज टेल अस व्हाट वुड यू ब्रिंग फ्रॉम पाकिस्तान इफ यू डिड ब्रिंग इट। एंड इफ एनी ऑफ द थिंग्स दैट वी आर क्रेविंग फॉर, जैसे सेना को पता था, अगर आपको यहाँ मिलती हो तो भाई मुझे प्लीज बता दें. हाँ, and listen, a little disclaimer, please don't bring any fruit or vegetable product when you're crossing the border. Meat This is product, just yeah. for discussion purposes. you're not Yeah, allowed yeah. to सिर्फ for एक माँ all ही right reasons. सिर्फ एक माँ ही रिस्क ले सकती है, मगर ये बहुत बड़ा वो है कि वो फल फल और वो लेके आ सकती हैं। अच्छा, तो तुम लोग का पकाने में गो टू फूड कौन सा है इन टर्म्स ऑफ ईज, एंड फॉर दोज हु आर न्यू टू कनाडा एंड न्यू टू कुकिंग, व्हाट वुड यू से कि यार ये करो, ये दो चीजें मिलाओ। जैसे अभी भी मैं अपनी खाला को फोन करती हूँ ना, तो वो मुझसे ऐसी सी रेसिपीज बोलती हैं कि इतनी उनके लिए आसान होती है, लेकिन I said, वो like that day I was like, कुछ नहीं है, भूखा, I was playing the victim card के कुछ ले आए खाना, वो नहीं हुआ, कार्ड नहीं चला। She's मेरे like, पास दो आइटम है. ना बेटा टूना फिश का कबाब बना लो। I'm like, टूना फिश का कबाब. yeah, she said, take the tuna fish from the can, put in some masala और हल्के से तेल में फ्राई करो, कहती इतने मजे के कबाब बनेंगे। I still haven't made it,
But anyway, so point is, what is your go-to food? मेरे जो है वो दो हैं, if I may go first. एक is purely store bought सारा बना हुआ, which is frozen pizza. To be honest, आपको आराम से जो है वो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं. तो मेरा तो ये है वो ये कि स्टैंड बाय पे हमेशा जो है वो फ्रोजन पिज्जा एक या दो रखे हुए होते हैं फ्रिज में. एंड दूसरा जो है वो अगर फ्रॉम द स्क्रैच घर से बनाना हो सप्लाईज में, इज एनी शेप और फॉर्म ऑफ आलू. मैं भी क्योंकि वो मुझे लगता है कि इट्स लाइक द मोस्ट रेजिलेंट, और उसके आपके पास प्लान बी सी डी भी बन सकते हैं. अगर आपने ओवर गला दिया, आप लिटरली उबाल के आलू की चाट बना के उसमें काली मिर्च नमक चाट मसाला डाल के भी खा सकते हैं. सो दीज वुड बी माय डायरेक्ट गो टूज. Okay. Then I want to go. Well, my go-tos are ginger chicken, dal और चावल. वाह भाई. पार्टी वहां से करती है ना, मतलब वो जिंजर चिकन, मगर 9 साल की उम्र से बना दे रही है. मतलब अबे अज्जू माय इज देश पे हलीम एंड 24 घंटा का जमीन में धसा के दम पोख. बस ना कह रही हो 9 साल से खाना पकाती है नीसा भी यार. चलो नहीं. वही मैंने कहा. हाँ तो बट हाँ, ये मेरे लिए सबसे इजीएस्ट है बनाना, क्विकेस्ट होता है. और फ्रीजर में हमेशा चपली कबाब जरूर फ्रोजन मिलेंगे. हाँ बनाएंगे. चना की चपली कबाब का मसाला. चपली कबाब बनाएंगे आप? मैं मैं पूछ रही हूँ कि आप ये गो टू में कह रही है कि चपली कबाब बना के रखें. हाँ, चपली कबाब बना के रखें बिकॉज़ इट्स द क्विकेस्ट थिंग टू डू. यानी कि अगर आपका लेवल सिना वाला है तो आप चपली कबाब बना के रखें. एक्चुअली यू नो व्हाट, किसी के भी लेवल में चपली कबाब और दाल मेरे हिसाब से सबसे दो आसान डिशेस हैं बनाना. True. And especially with people having access to masale, you need not go from scratch if you are at least starting out, right? आप शान का मसाला ले लो, आप कोई भी मसाला ले लो जो available है in the market, put that in the keema, you're done. और आपके पूरे हफ्ते के like आपने अपना खाना बना लिया. Yeah. अच्छा, for the people watching. हाँ. Sorry, I thought you were done. मैं बस ये कहते हैं मसाले वाली चीज पे जो है वो you don't, unless आप fresh like किसी मार्केट से अनब्रांडेड वाले मसाले लेके आ रहे हो, जो ये शान वाले मसाले डब्बे के हैं, ये नॉट ओनली जो देसी स्टोर्स हैं उन पे ही नहीं, यहाँ पे ये वॉलमार्ट पे, फ्रेशको पे, जो चेन अंग्रेजों के जो चेन्स ऑफ स्टोर्स हैं उनमें भी एक इंटरनेशनल फूड का आयल होता है. उसके अंदर आपको बेसिक मसाले तो मिल जाएंगे. तो एनीबडी कंफ्यूज्ड, आपको अगेन उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है. बट या बैक टू यू सना. Exactly. And my tiny tip, meal prep. Meal prep really helps. Weekend का कोई एक दिन ले लें, उस पे just put some basic things together, उसको अपने डब्बों में डालें, take it to work, put it in the freezer, you know, heat it up each day. एक चीज जो मीसम को बहुत पसंद है, मेरी एक डिश, वो है रोस्ट चिकन. और वो मेरी another very easy dish, चिकन पे मसाला डाल के फ्रीज कर दें, काम से वापस आए उस चिकन को ओवन में डाल दें, it's ready. So little quick tips. Good job. Saba. Okay, so after cooking for years in Pakistan and then for years here, I think you must remember that your freezer is your best friend. इस country में जब आप grocery करने जाते हैं, तो there is a huge concept of shopping in big amounts, wholesale stores पे जाती हैं like Costco, because यहाँ पे because of your busy schedule, even if you're not doing a job, you are so caught up with other things which you were not used to, like सफाई, घर देखना, ये सब, you don't get that time to cook or to eat and just sit down. जब आपकी आदतें इतनी बिगड़ी हुई होती हैं, माशाल्लाह, you need to understand that the freezer is your best friend. Have backups. थोड़ा करके, if you're cooking one day, and cook double, freeze the half, and then eat the half. So just make sure the freezer is your best friend. Also, यहाँ पे बेस्ट बात ये है कि हर चीज, and I'm sure people will agree, हर चीज जो है जल्दी पक जाती है. Now, जल्दी पक जाने का मतलब ये है कि because things are so genetically modified here, they're very easy to handle. चीजें खराब नहीं होती फ्रिज में. आप हफ्ता पड़ी रहें, आपकी सब्जियां, आपका फ्रूट, it will stay good. तो यहाँ पे ये जरा फायदा है. So things like desi food, you can freeze. I personally really like pasta, so I always have like a sauce that's ready, or from a jar even. And then just some pasta, boil it up, and that's it. तो बड़ी बहुत आसानियां हैं, हर चीज का टूल भी मौजूद है, not just ingredients but टूल भी मौजूद है. गार्लिक प्रेस भी है, ये कटर भी है, वो कटर भी है, तो आपको कटी हुई सब्जियां मिलती है ना. So invest in those, will save you time. Time is money. कटी हुई सब्जियां खरीदें, frozen सब्जियां खरीदें, then you just literally putting things in a pot. एक चीज मैंने ये भी ऑब्जर्व की थी कि सही, बहुत सही पॉइंट सब ने जो बोला था, मैंने भी एक चीज ये ऑब्जर्व की थी, कैसे एटलीस्ट फ्रॉम द काइंड ऑफ बैकग्राउंड दैट आई कम फ्रॉम,
on a regular basis canned सब्जियां या frozen सब्जियां पाकिस्तान में were not really a doable option. इलावा इसके कि obviously fresher is better and जायके में ज़्यादा अच्छा होता है, तो मेरी अम्मा के भी standards पे वही fall करता था, जो कि आप ठेले से जाके बिल्कुल fresh सब्जी जब वो लेके आए, जो वो आज सुबह सब्जी मंडी से लाए हो. But for convenience sakes, the thing that I've realized कि जो है वो यहाँ पे there's a lot of sabzi and a lot of half ready stuff you can get from the market, from regular departmental stores. Like you can actually, it's practically doable that you can prepare pure meals using canned goods. And like Sabha said कि जो है वो you have a lot of like fresh cut ready sabziyan for you to take. And frozen sabziyan we are very जो है वो doable, viable option. To be honest, जो है वो this is a import heavy country, so for that reason they get food imported from all over the world, from every corner of the world as well. तो आपको यूं ये भी नहीं होता कि आपको लिटरली मतलब आपको लिटरली 5 तरह की डिफरेंट मटर मिल जाएगी यहाँ पे. You will get confused कि कौन सा वाला मटर का बैग लेना है, because they'll have slightly different names to all of them. कोई slightly मीठी ज्यादा है, किसी के भी उसके पीस के साइज ज्यादा बड़ा है, कोई ज्यादा छोटी है, all that stuff. तो like you the options and opportunities are limitless. Like आप बहुत सारे combination of चीजें बना सकते हैं. That definitely helps you with your cooking and sort of like getting in the cycle of cooking by yourself. And I want to add to that. I just want to add to that real quick. नहीं अभी hack मत बताना. Hack is my another second question. No, not hack. I just want to add to that. And छोटी सी बात ये कि हमारे पहले बहुत स्टिग्मा अटैच था कि फ्रोजन चीजें और कैन चीजें नहीं खानी चाहिए. और and I get that कैन चीजों में सोडियम हाई होता है, प्रिजर्वेटिव होता है, but we just want everyone to remember कि frozen जब चीजें freeze होती है ना, fruits and vegetables, they are frozen when they are at their prime. They are frozen when they are the topmost quality. So what you get frozen is better than fresh produce. So utilize that. अपना थोड़ा सा perception change करें. अगर वो उसी वक्त कटी हुई चीज नहीं है तो खराब नहीं है, वो खाई जा सकती है. अपने आसपास वालों को भी inform करें इस बारे में. So you have to adapt. You have to get that. Yeah, you're so right. I think like what Sabha तुम और मीसा और सिन्हा भी जो बात कर रहे हैं, it's like hard work versus smart work, right? खाना पकाना एक तो मेरे लिए तो मैं unlike all वैसे sort of मीसम की तरह मैं थी एकदम बैचलर लड़का और बिगड़ी लड़की है, diagonal है. तो unlike Sabha and Sinha, we had not been cooking. And so for me, I think I want to assume almost like knowing Meesam jitna bhi, कि for us cooking is a journey. It's like discovering who we are, what our styles are. We take और हम चारों इतने excitement होती है हमारे अंदर कि हम अपनी आबाओ अजदाद की recipes लेकर उसको कैसे innovate करें या recreate करें और फिर अपनी भी recipes, अपने staples भी like you know the besan halwa, हम अपने traditions कैसे बनाएं और हम so I think food here is for almost everybody I know is a beautiful journey of discovering what they can do because it's easy work. फूड खाना पकाना सबा ने कहा इज एक्चुअली आसान है यहाँ बहुत जल्दी जल्दी मुर्गी मैं तो हैरान होती थी अम्मी कहती थी दाल को बेटा 4-5 घंटे लगाना जला मैं हर दफा अम्मी को समझाती हूँ अम्मी मेरी दाल तो आधे घंटे में गल जाती है मुहावरे गली गई है दाल अम्मी की दाल मैंने कहा मेरी तो दाल गली हुई है भाई यहाँ but it's funny that Sabha said that जैसे जब वो दाल is a very like easy straight go to जो तुम जर्नी वाली चीज कह रही हो ना that's what I had realized about myself कि funnily enough मुझे दाल relatively जब वो ज्यादा मुश्किल चीज लगती थी और मुझे मतलब मुझे लगती है मुझे इसके कंपैरिजन में कोई मैं क्विक सालन बना लूं कोई मैं सब्जी बना लूं एंड मोर देन दैट मेरे पास लिटरली केचप चटनी पे रखा ना लाइक बिल्कुल ही बहुत ही बुरे हालात हो जाए बिकॉज मुझे रिलेटिवली रोटी बनाना आसान लगती है मीस अभी मैं सवाल मैं I'm going to put a question so you can frame all your what you're saying with that as well वो कौन सी बातें थी जो you thought कि ये तो wow this is tough but when you actually came here you thought no man that's a piece of dal so what please and of course go on Sabha tum kya kahi thi and then add to this that what did you think was very tough and now you found that it's actually not so tough. The first thing, and since we're talking so much about dal, and so dal is also on my social media today somehow. I don't know if you're seeing that as well. So what's happening is that dal, as much as we say कि हाँ दाल चावल, we also have to remember कि जितने बिगड़े हुए हम हैं, हमें कचूमर, अचार, पापड़ के बगैर नहीं होता. Dal chawal is not that easy. I don't think any of you eat it without their company. No, yeah. But if you do, then it's definitely easy. I have to really listen. मुझे भी बहुत पता नहीं for some reason it's hard.
मुझे थोड़ा सवाल क्या था, I didn't talk mention. सवाल ये है कि ऐसी कौन सी डिश है या चीज है खाने रिलेटेड जो तुम्हें यहाँ आने से पहले, आई गेस इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू बिकॉज तुम ऑलरेडी खाना पकाती आई थी, नहीं, but I do have my kachap. या So, कोई कौन सी चीज है तुम वहाँ मुश्किल से बनाती थी और यहाँ बहुत आसानी से बनती है? and this will surprise you, that dish for me is actually biryani. मुझसे वहाँ बनती ही नहीं थी. I don't know what it was. It was khichdi. Here the chawal is so nice and long and grainy, and the murgi is so nice and easy to galao fry, and the masala are so good. तो मुझे बिरयानी यूं बन जाती है. बिरयानी तो इतनी मुश्किल ही नहीं है. Very happy. Okay, Sina and Misa. I've noticed यहाँ दम आसानी से लग जाता है. For some reason, I don't know Sabah if you'll agree with me, लेकिन maybe it's the pots, maybe it's something to do with it. लेकिन I'll agree with Sabah completely. मैंने नानी की जो गोश्त के पुलाव वाली रेसिपी पहले यहाँ ट्राई की थी, and on the first time I got it spot on. So I was very proud of myself. और it like so वही चावल की डिशेस जो मैं पहले कभी नहीं बना सकती थी that well, यहाँ आके maybe it's the equipment I had. Yeah. I think it also has to do with the fact that most of us here use actually flat induction tops which have a very even heat. पाकिस्तान में गैस नहीं आ रही होती, हल्की आ रही होती, बहुत तेज आ रही होती है, तो आपको वो भी अकाउंट देना पड़ता है. Here, you have very शुरू में आप बड़े परेशान होते हैं कि यहाँ ग्लास स्टोव टॉप्स होते हैं, राइट? हाँ, and I've heard like for people who पहले से कुक करते आ रहे होते हैं, you have to sort of like adjust your cooking style, especially अंदाजे वाले जो बेस होते हैं, मेरी अम्मा जैसे पकाती हैं, so like for sure they have to get used to of कि अच्छा दम बहुत अच्छा लगता है, like Sina said, तो then you're sorted. आपको बंद भी रख दो तो चूल्हे बंद पे भी पक रहा होता है खाना. You get away. क्या बात है. मीसम, तुम्हारे लिए क्या चीज मुश्किल थी और तुमने किया है? हाँ, like I said, honestly जो है वो growing up, again मैं पकाता तो कुछ भी नहीं था वहाँ पे, तो मेरे जो इमेज थी कि जो है वो रोटी पकाना is like बहुत ही सर दर्द की चीज. तो 99% चीजें होती थी कि people around me और specifically the ladies around me, वो लोग सालन और दाल और ये सब बना लेते थे, but जब वो नान बाहर से आ जाती थी. I think the other thing is कि लग्जरी यहाँ पे नहीं है, इस वजह से जो है वो मतलब फ्रेश नान की लग्जरी नहीं है, तो इस वजह से probably it pushes you in the other direction. But मुझे ये था कि मेरे लिए honestly personally रोटी बनाना was very comfortable that way. मैं थोड़ा for health reasons as well I try to go away from बाजार की पीटा या pre-packaged, क्योंकि यहाँ पे people who don't know यहाँ पे आपको frozen जो है वो नान वगैरह मिल जाती है जो गर्म करने का it's like pretty good, but still preservatives. Preservatives वगैरह nonetheless में होते हैं, तो I wanted to switch to just like घर की from the scratch बनी हुई रोटी, and उसमें so that is what I realized कि जो है वो maybe it is just अब आदत भी हो गई, used to हो गए हैं, but from the start मुझे इतना मुश्किल लगा. Honestly it gives you a little bit of a good upper body workout as well. arms भी आपके वो अच्छे हो जाएंगे. But yeah, जरा मसल को दिखाओ. हाँ दिखाओ, जरा मस्कल दिखाओ. आपके अच्छे हो जाएंगे, मेरे कुछ नहीं हुए, मैं ऐसे ही हूँ. तो गाइस तुम बताओ कि तुम्हें क्या फील हुआ, because since you mentioned कि you didn't come from the background for cooking, what was your proud moment? I think like मुझे तो क्या कहा जाए, ऐसी शर्मिंदगी वाली बात है, लेकिन मुझे तो लगने लगा कि मेरे हाथ में मेरी अम्मी टाइप का जायका है. मुझे तो ऑनेस्टली ये मेरे भाई लोग बेहोश हो जाएंगे सुनते हुए, बिकॉज माय ब्रदर्स डोंट ईट मेरे हाथ का, बिकॉज दे लाइक नहीं उरूज को तो खाना बनाना आता ही नहीं है. एंड ट्रू रियली ऑनेस्टली मैंने खाना कभी नहीं बनाया था. तो टू डेट हमने अम्मा ये जिंजर है, ये गार्लिक है, मैं उस तरह की हूँ, ये कौन सी दाल है दोबारा बताइए जरा. और बार बार रेसिपी, एक तो मेरे अंदर कुछ क्रिएटिविटी है तो मैं कभी रेसिपी फॉलो भी नहीं करती. आई ऑलवेज इनोवेट, एंड यू गाइस नो बिकॉज ऑब्वियसली सबा भट्ट लीडिंग में खिचड़ी में जो शक्कर डाली थी. हाँ, मैं मेंटोर मेरी सिखा करके अब इसको ये कर दो. लिटरली लाइक आई कॉल अम्मा एंड सबा जस्ट इक्वली लाइक ये क्या होगा इसका वैसे और बन जाता. लेकिन आई थिंक इट वाज अ रियली प्राउड मोमेंट फॉर मी कि जब लोगों ने मेरे खाने की तारीफ करना शुरू किया, और जब जैसे कि मेरा हलवे की मैंने एग्जांपल दी कि जब वो 6-7 दफा बनाया ऑन रिक्वेस्ट, तो फिर लाइक माय नॉट गुड इनफनेस इम्पोस्टर सिंड्रोम वाज लाइक नो रूज, 1-2 दफा तो लोग तकल्लुफ में कह देंगे, लेकिन अगर रिक्वेस्ट करके मांग generally halwa is very very nice. It is really good. Thank you. I literally had some today. It's still in my fridge. I literally had.
We still haven't. It's amazing how long she's gone. खराब होता है चीजें and halwa that you guys have given me generally lasts in my fridge for months. So thank you. कोई मीठा नहीं खाता भाई, तभी इनका घर था, हमारे यहाँ तो अनवेक उसके बाद 2 और बैच बन चुके। लेकिन And that brings you back, Riju. I think you are also now comfortable with longer cooking items or censored cooking items, क्योंकि यहाँ पे बन जाते हैं सारे। हाँ बिल्कुल, तो मुझे बड़ा शौक था कि तो मैंने पहले खीर से स्टार्ट किया। So I think I was generally surprised by the fact that I could cook a decent meal which people really liked. I was just shocked. Like what I cook. अभी तक मेरी फैमिली ने मेरा खाना नहीं खाया। My family meaning like मेरे भाई और मेरे अम्मा पापा ने। Oh, wow. So that's still a very big test. Will I ever cook? But other than that, मेरी खाला वाला ने सबने खाया हुआ है and they love it. So आखिरी सवाल guys, we know we've gone a little over on this episode, is one hack, cooking hack that you want to give our viewers. Viewers, वैसे मैंने बोला नहीं, अब तक 3 episode हो गई है, लेकिन अगर if you like it, put a ring on it, which means that please subscribe, comment. Ring on it. Somebody else has to do this dirty job, okay? ये रिश्ता बनने लगा, मतलब if you like it then you put a link on it. And yes, subscribe the YouTube channel, whatever. I know. जी, क्या है आपका hack, जुगाड़? भाई, I at least want to give one hack about the roti वाली चीज, because I've been going on and on about the roti bit. उसमें वो था कि sort of taking inspiration from what Sina said, meal prep वाली चीज. So how I did my roti वाली चीज, क्योंकि I can't practically do a 9 to 5 job and everything and then like come back home and from the scratch रोज रोटी नहीं पक रही होती है. The simple thing is like, एक तो first of all lower down your standards of कि आपको रोज fresh रोटी खाने को मिलेगी, वो नहीं हो रहा है. This is not a hack for that. एक्सपेक्ट करते हैं, जो मर्द अपनी औरतों से एक्सपेक्ट करते हैं, आपका हैक ये है कि आपको हैक कर देना चाहिए, you know? ये आप एक और पॉडकास्ट की थीम के लिए जवाब बचाइए. बट जो है वो माय हैक राइट नाउ वाज कि जैसे ऑन द वीकेंड आपने बहुत सारा आटा लेके जब आप गूंद लें, ठीक है, पेड़े बना के, एंड देन एक this term that my mom used to use and she is the one who recommended that I do this, रोटी कच्ची पक्की करके उतार लें. So literally 3 seconds on तेज फ्लेम का चूल्हा करके तवे को तेज फ्लेम करें and just like 3 seconds on each side and take it off. Freeze that. You will also end up skipping गैर जरूरी माइक्रोवेविंग. अब नेक्स्ट डे आपको जब वो रोटी निकालनी है, you'll take it out from the fridge. आप उसको तवे पे अगेन फॉर लाइक 5 seconds each side रखें. आपको कुछ पहले से थॉ नहीं करने की जरूरत है. If you have fully cooked roti and you'll have to microwave, you get to skip microwaving as well. आपने वो उसको रखा, जितनी देर में आप अपना सालन रेडी कर रहे हैं, अगर आप वो माइक्रोवेव कर रहे हैं, कुछ नया बना रहे हैं, जितनी देर में व्हाट्सएप मैसेज चेक कर रहे हैं, योर रोटी विल बी डन. So this is what my big recommendation hack would be, कि आप आराम से सकते हैं and the roti really feels fresh as well उस वक्त, क्योंकि वो अगेन आपने fully cook उसको तवे पे उस वक्त की होती, तो उसमें it has this nice aroma to it as well. लड़के के हाथ में जादू है. अगर आपने दूसरी एपिसोड देखी है तो आपको मालूम होगा लड़का सिंगल भी है, तो रिश्ते के लिए यही एपिसोड देख लिया मतलब. Do we need to retitle this episode? एपिसोड ये पूरी आप ये पूरी पॉडकास्ट ही वो चेंज कर दे, हमसे शादी कर लो क्वेश्चन मार्क. अच्छा गाइस, 2 मिनट रहते हैं. सबा एंड सिन्हा हैक्स जुगाड़. आपको फॉर एग्जांपल really fast. So guys, हर देसी खाने में and non देसी खाने में अदरक is a big thing. लहसुन is a big thing. Not अदरक. अदरक is ginger. लहसुन which is garlic is a big thing. पेस्ट जो होता है बुदल वाला, वो I'm not a big fan, उसमें इतना फ्लेवर नहीं आता. हमें आदत है अच्छे ताजे लहसुन की, और अम्मी पीस कर रखती है. So what you do is get your whole garlic, take a grater, छोटा वाला grater जो होता है, बिल्कुल छोटा वाला, the small holes, और आप garlic को grate कर लें और आपको garlic का paste मिल जाता है उससे, उसी वक्त खड़े खड़े चूल्हे के ऊपर. तो improvise, use it, fresh garlic भी होगा और जायका भी अच्छा आएगा. And I am going to do that next. wear gloves though, wear gloves. गार्लिक प्रेस तो तुमने दिलवा दिया मेरा, लेकिन ठीक है. You know. One little hack, not specifically a desi hack, but something filling, healthy to do, quick. बहुत से अपने पसंद का fruit लाएं, make different little baggies with them, mix the fruit up together and freeze it. Like bananas ले लें साथ, take bananas, what else? Put some mangoes together and some strawberries with it, put it in one bag. Take some beetroot, chukandar, carrot, spinach with maybe a little bit of ginger. Make your little smoothie bags. Put them in the freezer. Anytime you're in a rush, कोई जल्दी है, उसमें दूध डाल दें, उसमें पानी डाल दें, उसमें coconut water डाल दें, उसमें almond milk डाल दें, and in minutes you have a nice smoothie ready. Further, अगर आप you want it more of a meal-like feel, उसमें थोड़ा सा protein powder डाल दें, vanilla का,
and you're good to go. So for me, that has worked very well. Excellent, good job guys. ये hacks तो बड़े amazing है. मैं खुद भी try करूँगी. सबसे newbie immigrant, newbie cook, newbie everything. But what's your hack then? oh, my hack. चलो तुम सोचो इतनी देर में मैं एक और बताता हूँ. सेना के भी बोलने से मुझे ध्यान में आया. I actually became best friends with quinoa. पाकिस्तान में रहते हुए मैंने अंग्रेजी टीवी पे ये सुना था, but I did not honestly know and I didn't find it popular या commonly, मुझे आगे पीछे अपने नहीं दिखता था. That actually allowed me to excuse me, replace my lunch from being a full meal, like proper सालन चावल वाला जब वो meal, to having just salads. क्योंकि मेरी इतनी आदत थी proper lunch करने की कि ऑफिस में if I skip it altogether then I'm way too hungry. But खाली सैलेड से पेट भी नहीं भरता है जब तक वो रोटी चावल नहीं खाया वो. So I felt that this was the best thing, that the midway pass, कि आप salad बनाएं and आप boil करके quinoa में डाल दें. Quinoa boiling takes no time honestly, and quinoa actually अगर आप batch में कर भी दें 3-4 दिन आराम से quinoa जो है वो fresh चलता रहेगा फ्रिज में रख के. तो आप उसको ऐड कर लें, it will actually fill you up a lot better in your salads. You can use that quinoa. साथ में आप मतलब कुछ stir fry किस्म का chicken भी बना लो, you can have quinoa with that as well. Yeah, I think my hack is also like pretty much वो freeze करने वाली चीजें, but also like मैंने discover किया pasta boil करके उसमें frozen vegetable डालें और soya sauce और नमक काली मिर्च डालें, and I thought that always turned out to be so instant and really nice. So I think chawal and pasta, all high carb things, are very good hackies, like in terms of quickly कोई आ रहा है मटर चावल बना लिया. And of course, I'm also a big anda fan these days. But ये बातें होती रहेंगी. अगले एपिसोड में हम आपका जरूर मिलेंगे because time ऊपर हो गया है हमारा. Thank you from Peas in a podcast. Peas. Oh, sorry. Bye guys. See you. All right. Bye.